हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्वेल्थ के बाद डिस्टेंस लर्निंग, जिसको कि कोरस्पोंडेंस लर्निंग भी बोला जाता है, से ग्रेजुएशन करना सही है या नहीं, और अगर है तो उसे कैसे करें। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एज ए स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी है या फिर जिन्होंने अभी अभी ट्वेल्थ पास किया है या करने वाले हैं, उनके माइंड में डिस्टेंस लर्निंग के बारे में फर्स्ट थिंग जो आती है वो ये है कि क्या इस डिग्री की वैल्यू, उस डिग्री की वर्थ जो नॉर्मल कॉलेजेस है या फिर जो नॉर्मल प्रोग्राम से स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके इक्वल है या नहीं। सो द आंसर इज कि हाँ, इस डिग्री की वैल्यू नॉर्मल कॉलेजेस से जो डिग्री ग्रेजुएशन किया जाता है या फिर नॉर्मल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट रेगुलर बेस पे जाते हैं और फिर जो उन्हें डिग्री मिलती है उसकी इक्विवेलेंट ही होती है। नो मैटर फॉर विच जॉब यू आर अप्लाइंग, नो मैटर फॉर व्हाट डिग्री यू विल परस्यू इन फ्यूचर, it will it has a equal importance or equivalent worth to that regular program degree, right? So you don't have to worry about it. The second question related to distance learning is, what are the advantages of distance learning or correspondence learning over the traditional way of learning? So क्या फायदे हैं डिस्टेंस लर्निंग के ट्रेडिशनल वे जो कि नॉर्मली लोग स्टूडेंट प्रेफर करते हैं उसके कंपेयर में क्या ज़्यादा फायदे हैं? सो आंसर इज इट गिव ए चांस टू दोज स्टूडेंट who were unable to enroll in a traditional way of learning, and through this way of learning you will learn with your pace and conveniences. It does not matter what your speed of learning and what way you just learn and complete the degree. It's just totally on yours and how you complete that degree. And the first thing, and the biggest advantages of this way of learning is it gave the chance to those students who were by mistake or unfortunately did not get enrolled with traditional way of learning due to some reasons they are facing, like the fee structures or anything. So it gives those students a chance to complete their graduation and their higher study. So it is in that way it's the biggest advantage for those students. Third thing about distance learning is it is the best way of learning for working candidates. जो लोग काम करते हैं, जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ काम भी करें, या फिर जिन्हें जो अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ देयर फैमिली स्टेटस एंड बिकॉज क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है उनके फैमिली पे कि कुछ करना है जल्दी से जल्दी टू सस्टेन देयर फैमिली. So it is the best way of learning medium for those students to complete their graduation or learning, because इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है कि मतलब आपको कॉलेज जाना है. there is no discontinuity in your income also. आप कंटिन्यूसली अर्न कर सकते हैं. इसके साथ साथ आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में. वर्किंग एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत कम दाम पे इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव. आई मीन टू से ये बहुत कम पैसों पे कंप्लीट किया जा सकता है. और इट इज़ and through technological help, like YouTube or the other mediums which just generated after COVID or during COVID, will help you enormous way to complete your graduation with equal level of knowledge. रेगुलर स्टूडेंट की तरह ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है. आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं. So that way it became a best way of learning also, because it gives you a chance to complete your graduation. At the same time
by completing your working experiences or the job you are doing right now. So in that way it became a different kind of experience for those students, and a biggest benefit for those students. And it is very effective to manage the time for those students who are just completing the distance program, as well as they are working, because there's no need to go your college on regular basis. Only you have to appear in exams, or I think 1 or 2 times there's a assignment submitting in your college every year. So it's not so much time consuming, you can manage. In that way it is the biggest advantages for those working student or working professional who want to complete their higher education. Fourth thing you should know about distance learning is, it is the boon for those candidates, those students who is working in any public sector, but they have to complete their graduation just for taking the advantages of promotion. So उन लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें. तो डिस्टेंस लर्निंग एक बेस्ट वे है to complete your graduation while working your job, and for them it is just a boon, because they will just receive a great incentives and promotion after completing the graduation. So it's the best way of learning for those students who is just undergraduated and doing job in public sector. Like there are many jobs of teachers, or maybe clerks in bureaucracy. So they are working job in that sector, but they are just undergraduated. तो उनको प्रमोशन लेने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है. So they go through the distance program to pursue that degree, and they just complete it. अब तक हमने बात किया कि डिस्टेंस लर्निंग के क्या फ़ायदे हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग के कंपेयर में. बट अब हम बात करेंगे कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं डिस्टेंस लर्निंग कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज समटाइम्स यू फील a little bit isolated from your college life or your graduation things, and you just feel a kind of isolation. आपको कम चांसेस मिलते हैं दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने का, खासकर उन दोस्तों के साथ जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और आप उनके साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, और उनके एक्सपीरियंसेस नहीं जान सकते. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर मीडियम स्टूडेंट इन कंपेयर टू डिस्टेंस वे ऑफ लर्निंग, कि आप डिस्कशन और डिबेट कर सकते हैं. सेकेंड डिसएडवांटेजेस ये है डिस्टेंस लर्निंग के कि आप किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप यू आर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट कॉलेज लाइफ, एंड आप अकेले हैं घर पे, आपको खुद से पढ़ना है, और आपको कम एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, खासकर जब हम MBA जैसी डिग्रीज की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस पे के बेस पे मैटर करती है. लाइक देयर आर मेनी थिंग्स they in colleges they provide student many kind of experiences, and they give them chance to work with company also. तो वहाँ पर वो स्टूडेंट रेगुलर बेस के स्टूडेंट जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बट एक डिस्टेंस वे ऑफ लर्निंग वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो मौका नहीं मिल पाता है. दैट्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस इन माय ओपिनियन. बट लोग पूछते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं कि इसको ना किया जाए. वो खासकर उन लोग ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने जो अफोर्ड नहीं कर सकते रेगुलर बेस के कॉलेजेस, और जिनका छूट चुका है, मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स. आई थिंक इट्स नॉट ए डिसएडवांटेजेस एज मच कि आप उसे परस्यू ना करें, क्योंकि मे बी आपके पास कम एक्सपीरियंसेस होंगे,
in compare to regular student और regular medium student, but at the same time आपके पास एक डिग्री होगी जो equal worth के होंगे, जिसकी वैल्यू रेगुलर स्टूडेंट के कंपेयर में इक्वल ही होती है किसी भी जॉब्स के अप्लाई करने में और या फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए। तो ये उसकी वर्थ इक्वली होती है और ये कम नहीं होता है कि आप काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और मे बी आप डिस्टेंस पे से कुछ और कर रहे हैं, कहीं और टाइम दे रहे हैं और साथ पढ़ भी रहे हैं और डिग्री भी मिल रही है। इतना कुछ सब कुछ हो रहा है, बस एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा बहुत कम एक्सपीरियंसेस है। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अवॉइडेड बाय इंटरेक्टिंग अदर स्टूडेंट थ्रू अदर मीडियम, लाइक देयर आर you can take help of social media or any other kind of platform to manage those gaps, and there are many classes which you can take from online sources to minimize those gaps in knowledge and experiences. So that way you can beat the gap of regular medium student and distance student, right? So that's my opinion. So that's all, ये आज की वीडियो थी। होप यू ऑल लाइक इट, एंड यदि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो आई होप यू विल जस्ट एम्पलीफाई इट एंड शेयर इट टू अदर स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू their graduation or masters.